हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। फैजल, गुड इवनिंग। राइट। यस सर। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है? सर अपन वो कर रहे थे ना आज डाउट डिस्कशन। हाँ, ठीक है। ये डाउट्स है क्या? कल क्लास का? हाँ सर, आप जो क्वेश्चंस करो बोले थे ना वो मैं प्रैक्टिस किया तो उसमें ठीक थोड़े डाउट्स है। ठीक है, बाद में करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने के बाद वो डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है मतलब? रिवर बोट क्वेश्चंस, ठीक है? रिवर ओ, बोट रिवर बोट क्वेश्चंस. So you can, in place of boat, you can also take a swimmer. Both are same only, right? यस So सर। before we enter into the concept, first you have to understand 2-3 words. Let me say, words nothing but velocity of boat with respect to ground. Velocity of boat with respect to ground means someone who is at rest observing boat, which is in river. Understood? So this means velocity of boat with respect to ground. What is the meaning of it? Means someone who is at rest, who is observing, who is at rest on the ground, seeing the boat. Clear? Second, velocity of river with respect to ground. So this is velocity of river with respect to ground. Fine. Next, which means same person may be observing river also. River is flowing. Second, यस सर। velocity of boat with respect to river. What does it mean? How can river see the boat? No, it's not like that. Some aquatic animals will be there. Na? Aquatic animals are observing boat. It means velocity of boat with respect to river. Okay. So here river is one reference, ground is the other reference. But try to understand. With the help of diagram, you try to understand. Okay. So ground is one reference. This is, say, ground is taken as reference. Ground is taken as reference. Now river is taken as reference. So river is taken as reference. River is taken as reference. Suppose if you join these two. If you join these two means you can give that velocity of river with respect to ground. Remember, but how to write this? VB minus VG. Okay. This one is VR minus VG. Fine. This is VB minus VB minus VR. But internally, these two includes VBG. First you write like this, VB minus VR only, but you can also understand that as VBG minus VRG. Just to check whether you are finally going to get like this or not. Fine. VB minus VG है ना? VBG को कैसे लिखना? VB minus VG. ठीक है? बीच में माइनस है. VRG कैसे लिखना? VR minus VG है ना? हाँ सर। अगर ये स्प्लिट की है तो मतलब ये निकाल दिए तो ब्रैकेट निकाल दिए तो ये VG माइनस यहाँ पर है, VG प्लस यहाँ पर होगा. समझ गया? हाँ सर। ये दोनों कैंसिल होगा. फिर आपको मिल जाएगा VB माइनस VB माइनस VR. हाँ सर। ठीक है. नाउ मूविंग टू द डायग्राम. ये जो लाइन मतलब जोड़ रहा है दो रेफरेंस को, ये मान लो VRG का. ठीक है? समझो बोर्ड यहाँ पर है. ये तो ये जो लाइन वो जोड़ रहा है बोट को, द पोजीशन ऑफ बोट एंड रिवर
river has taken as reference any point. So river has taken as reference this particular line joining VBR. ठीक है, समझ गया? इसके बाद suppose if you forget few minutes the river as reference frame, if you join this one, how it looks like? ठीक है, एक मिनट, ये इसका जोड़ना है ना? तो ये मान लो ये v velocity of boat with respect to the ground. ओके VBG। ये कैसे है? पैरेललोग्राम जैसा है ना, हाँ है ना? ये तो एक पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये कैसे VBG, ये रिजल्टेंट बन जाएगा ना? See, you draw two vectors like this, parallel to this one. Which one? This is parallel to, this is parallel to, this line is parallel to VBR, ऐसा मान लो। ओके सर। ये जो दूसरा लाइन है ना, दिस इज पैरेलल टू AVRG होगा ना, ये VBR होगा ना, समझ गया? ये तो पैरेललोग्राम है। यस सर। So finally, what is VBG? VBG in vector form is, it is VRG plus VBR. ठीक है? Then remember, suppose if boat is moving in upstream, upstream मतलब क्या है? Slightly in the opposite direction, slightly in the opposite direction of the flow of river. Okay, the flow of river. ठीक है? So थीटा लेना है 180. So पैरेललोग्राम में अगर 180 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलता रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम में 180 सब्स्टिट्यूट करें तो पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड कैसे है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन पैरेललोग्राम वो कैसे है? C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा है ना? हाँ सर। cos 180 कितना? cos 180 मिनिमम सर। cos 180 -1, ठीक है? हाँ, अगर -1 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये -1 ये 2AB है, पूरा कैसे 2AB होता ना? हाँ सर। ये कैसे है? -2 ये -B होल स्क्वायर जैसा है। हाँ -B होल स्क्वायर। ये रूट है, रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल। ओके। C इक्वल टू A माइनस बी। अभी C क्या है? VBG है, ठीक है? ये का जगह पर क्या है? VRG, समझ गया? VRG। हाँ सर। माइनस B जगह पर क्या है? VBR, VBR। ठीक है? If river is moving in the upstream, suppose if river is moving in the downstream, suppose if river is moving in the downstream, if river is flowing, let us say, sorry, if boat, sorry, it's not river, if boat is flowing, boat is moving in the downstream, ठीक है? डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है? स्लाइटली इन फेवर ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है? स्लाइटली इन फेवर ऑफ रिवर फ्लो, इसका मतलब क्या है? थीटा लेना है 0. इफ यू सब्स्टिट्यूट थीटा 0 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वो कैसे आएगा? C is equal to root of A square plus B B square। स्क्वायर 2AB cos 0 कैसा? कितना? हाँ सर। cos 0 कितना? cos 0 1। 1, ठीक है? अब क्या मिलता? A प्लस B होल स्क्वायर मिलता, ठीक है ना? हाँ। और रूट भी रहेगा, दोनों कैंसिल। तो अभी Cancel, हाँ। VBG कैसे होगा? VBG आपने जैसा लिख दिया, मैग्नीट्यूड VBG इज इक्वल टू VRG प्लस VBR, ठीक है? समझ गया? हाँ सर। इस पर क्वेश्चन रहेगा कैसे?
टू क्रॉस द रिवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन T1 लीजिए, रिवर का विड्थ कुछ तो कुछ रहेगा ना, VBG, ठीक है। अभी VBG कैसे लिखना है, VRG माइनस VBR, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके ऊपर जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ऐसा। उसके सर। डाउनस्ट्रीम का हाँ डाउन स्ट्रीम पर भी सी टी वो दे देगा T2 मतलब विड्थ तो कुछ रहेगा ना, ये हाँ अपस्ट्रीम मान लो, ये तो डाउनस्ट्रीम मान लो, तो डी कैसे, तो भी डी सेम रहता। VBG डाउनस्ट्रीम में कितना ले लिया आपने, VRG प्लस VBR। सो कंपैरिजन क्वेश्चन रहेगा, समझ गया। हाँ सर। अभी दोनों लिख दो, पहले से बताना है। हाँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी लिख दो। हाँ सर लिख लिया। हो गया। और ओके सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, so a person, a boat can cross, right on, a boat can cross the river, in two ways. So first way is, can cross the river in two ways. The first way is to cross the river in shortest path, ठीक है, right. So just you imagine that these are the banks of river, ठीक है, these are the banks of river, ठीक है। See, how to imagine banks of the river, matlab with the, this is, see, based on the direction of flow of river. Suppose if river is flowing from left to right, if river is flowing from left to right means this will be right bank, left to right means ऐसा, this will be right bank, this will be left bank, समझ गया। If see, river flow is not in our control, fine. So river is flowing from left to right, right to left, so this will be left bank, this will be right bank, ठीक है। So based on the direction in which river flow, right. So if you construct a bridge, that will be almost width of the river, समझ गया। If you construct a bridge, that will be width of the river, ठीक है। Suppose boat want to crossing the river in shortest path, so he has to see, boat has to be rowed in this direction with respect to river. So this will be velocity of boat with respect to river. See one thing, you can take even in this direction also, but while writing the equations you have to change it, ठीक है। So this is the direction of river flow, this is the direction of river flow, समझ गया, left to right, ठीक है। So VBR कैसे, VBR मतलब velocity of boat with respect to river means with respect to the aquatic animals, with respect to the aquatic animals, boat is rowed like this at an angle theta with the vertical, समझ गया। So definitely there will be some river push, na? There will be some river push. So this will be the component of VBR. So you can write VBR sin theta, समझ गया। थीटा के लिए अपोजिट क्या होता है, ये होता ना, ये VBR y माइनस, बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड है ना, फ्रॉम द रेफरेंस, ठीक है, लेफ्ट साइड है, तो इसीलिए माइनस। नाउ यहाँ पर VBR cos थीटा हो जाएगा, ठीक है।
See how the boat is observed when the person who is standing on the ground, it will be VBG. So now VBG is equal to VBR cos theta. समझ गया? Person who is at rest on the ground watching the boat is almost going straight, but with respect to the aquatic animals it is going like this, but there is component of VBR cos theta which is equal to VBG. ठीक है, समझ गया? सर एक छोटा डाउट, हाँ ठीक है, मुझे बोलना। हाँ ठीक है। अगर एक पर्सन ब्रिज के ऊपर ठहरा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोट ये कंपोनेंट में दिखती क्या VBR cos theta? नहीं, this is the component VBR is making an angle theta with the vertical. ठीक है? VBR is what? VBR is velocity of boat with respect to the river, मतलब with respect to the aquatic animals ऐसा जा रहा है। ठीक है? ये VBR वेक्टर है ना, इसका कंपोनेंट रहेगा ना। ठीक है? VBR का कंपोनेंट रहेगा, तो VBR का कंपोनेंट इज इक्वल टू VBG। समझ गया? हाँ सर। So person observes with VBG only, velocity of boat with respect to the ground. ठीक है? That velocity of boat with respect to the ground will be equal to VBR cos theta. और VBR is equal to minus VBR sin theta. हाँ, ऑपोजिट टू द रिवर डायरेक्शन एक और कंपोनेंट रहेगा ना VBR का, तो दूसरा कंपोनेंट क्यों माइनस लेफ्ट साइड है। ठीक है? क्लियर? ओके सर। नाउ VBR पहले कैसा लिखना? VBR इज इक्वल टू, ऐसा लिखना, VBR इज इक्वल टू VBG माइनस VRG है ना, ऐसे VB माइनस VG है ना, VB माइनस VG माइनस ऑफ VR माइनस VG है ना, कैंसिल करे तो भी VBR माइनस VG आए, VR आएगा। ठीक है? VB माइनस VR आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, एक काम करेंगे, पहले एक्स डायरेक्शन लेंगे, पहले एक्स डायरेक्शन लेंगे। ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, VBG इज इक्वल टू VBR प्लस VRG लिख सकते ना। हाँ सर। समझ गया? तो खाली लेफ्ट साइड ले लिया मैंने, लेकिन एक्स डायरेक्शन में लेना बोले तो इसका क्या ऐड करो, एक्स डायरेक्शन का ऐड करो, ये VBR x VRG x। ठीक है? VBG along x direction is equal to VBG along x direction equal to VBR along x direction क्या ले लिया आपने डायग्राम में? माइनस VBR sin theta। ठीक है ना? VBR sin theta। ठीक है? So anyhow VRG will be, VRG is what? VRG is velocity of river with respect to ground is from left to right only ना। वो ऐसे लिख देना बस, उसमें उसका कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। cos theta। VRG। ठीक है? नहीं VRG है सर, cos theta भी तो लिख सकते हैं ना, वो भी तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। VBG इक्वल टू VBR cos theta, लेकिन अपन को क्या है इक्वेशन में? VRG है ना। ओके, VRG है। ओके ओके, समझ गया? वो रिवर का बात है। हाँ सर। ठीक है? उसके बाद ये एक्स डायरेक्शन हो गया, राइट ना। उसके बाद सपोज if the boat, if person in the boat wants to reach here, let us say at point B, कहाँ से? O से। ठीक है? ठीक है सर। With respect to aquatic animals, he is rowing the boat like this at an angle. See, there is no such possibility exactly to reach, may not reach, may reach. Is it right? Suppose by chance, instead of reaching B, he is reaching at C on the other bank of the river. चांसेस रहेगा, चांसेस नहीं रहेगा, दोनों संभावना है। ठीक है ना? दोनों चांसेस। हाँ सर। अगर see his target is to reach B, instead he misses the target reaching at B, तो शिफ्ट आ गया ना इनका, x मान लो। समझ गया?
ओके ठीक है सर। x इज इक्वल टू कैसे लिखना, वेलोसिटी, अपन वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है अपन का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है ना। हाँ सर। अभी वेलोसिटी किसका है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, x, साथ ही साथ t, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t है ना। हाँ सर। एक्सिस क्या है, एक्सिस शिफ्ट है, शिफ्ट बोल सकते हैं या ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू वीबीजी का इक्वेशन क्या है, माइनस वीबीआर साइन थीटा प्लस वीआर जी, प्लस यार जी। आउटसाइड क्या है एक्स टी है, से ठीक है, लीजिए एक इक्वेशन 1, वीबीजी का एक्स हो गया, वीबीजी का वाई डायरेक्शन लीजिए, वाई डायरेक्शन लेना बोले तो, वाई डायरेक्शन लेना बोले तो, ठीक है, वाई डायरेक्शन लेना बोले तो वीबीजी वाई लिख दो। वीबीजी वाई मतलब ऊपर कौन सा कंपोनेंट है, वीबीआर, वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, वीबीआर कास थीटा, वीबीआर कास थीटा, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, वीआर जी वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते नहीं ले सकते, वो ना वो मतलब यूजुअल होता नहीं अनयूजुअल होता, वीआर जी वर्टिकल, वीआर जी रिवर का फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते क्या, वर्टिकल डायरेक्शन नहीं सर। नहीं, बस वीआर जी जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सर। ठीक है, नहीं ले सकते। वीआर जी हॉरिजॉन्टल हाँ ले सर लिया नहीं। बोले तो वीआर जी वर्टिकल नहीं ले सकते। हम्म। सो आपको आए वीबीजी वाई इज इक्वल टू, ठीक है। नाउ टू क्रॉस द रिवर, to cross the river, time taken to cross the river, to cross the river, t is equal to, अपन को cross the river means वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना है, विड्थ ऑफ द रिवर तो जाना है ना, हाँ सर। कौन सा वेलोसिटी वीबीजी वाई के साथ, समझ गया। हाँ सर। अपन को वीबीजी वाई क्या है, वीबीआर कास थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। समझ गया। ये दूसरा इक्वेशन, सी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना बोले तो सेम टाइम लगेगा, वर्टिकल में भी विद इन द सेम टाइम it moves, see separately it cannot have x and y displacement, x and y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, समझ गया। हाँ सर। हॉरिजॉन्टल जाने के बाद दूसरा टाइम लेके वर्टिकल जाना है, वैसा नहीं रहता, सेम टाइम में बोथ x रहेगा, y भी रहेगा, वेलोसिटी वही रहेगा, वेलोसिटी x ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, x ही रहेगा, x डायरेक्शन पर भी रहेगा, समझ गया। तो हाँ सर। टेकिंग प्लेस दिस x as well as the crossing the river, the process of crossing the river taking place simultaneously, so that is why substitute 2 in equation 1, ठीक है। so x is equal to, अपन की इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन वीबीआर साइन थीटा प्लस वीआर जी है ना, हाँ सर। बाहर आपका t है, t का जगह पर d बाई वीबीआर कास थीटा लिख दो। ये तो इस इक्वेशन का फंडामेंटल है, इसमें दो केसेस रहेगा, इसके इक्वेशन के ऊपर दो केसेस रहेगा, तो पहले यहाँ तक लिख दो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी रहेगा, मैं बता दूं आपको। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है। ओके सर लिख लिया। ठीक है, सेट केस वन, केस वन क्या है, इफ बोट इज
road. If boat is road, ROWED, ROWED at an angle, theta, theta equal to 0 मतलब क्या है, स्ट्रेट, ठीक है, at an angle 0. सो यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 0 लेना है, थीटा ले लिया ना, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, थीटा 0 मतलब लुकिंग द पॉइंट बी, ठीक है। ठीक है सर। अगर थीटा सब्स्टिट्यूट करे तो इक्वेशन पे क्या होता, मुझे बोल दो, कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए, साइन थीटा, थीटा 0 ले लिया, थीटा 0 लिए तो साइन 0 कितना होता, साइन 0 0 ही होता, जो 0 हो जाए तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा ना, पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन VRG रहेगा, VRG रहेगा। हाँ, ठीक है, VRG इंटू हाँ, डी बाई डी बाई VBR, दैट्स इट। cos 0 1 है, ठीक है, हाँ, हाँ सर, वो लिखना है। तो ये इक्वेशन पर आपका न्यूमेरिकल है, समझ गया। ठीक है सर। VRG बाई हाँ, VBR। ये तो ड्रिफ्ट मिल जाएगा, ये तो केस 1 है, ठीक है, केस 2, हेलो, हाँ सर, सुन दो। सपोज if x is equal to 0, which means if boat exactly reaches, the opposite bank of the river, ठीक है, without any drift में मतलब x 0 करना है, ठीक है, ठीक है x सर। 0 करे तो वो ऊपर जो इक्वेशन में x 0 सब्स्टिट्यूट करे तो क्या मिलता है, मुझे बोलो, साइन थीटा का इक्वेशन आएगा आपका, x 0 करने के बाद 0 कर दिया, माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस VRG। अभी मुझे बोल दो, ये तो डी बाई है VBR cos थीटा, ये VBR cos थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, डी नीचे आएगा, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, 0 बाई एवरीथिंग इज आल्सो 0, समझ गया। लास्ट में आपको क्या इक्वेशन आएगा, VBR साइन थीटा लेफ्ट साइड लीजिए, 0 होने के बाद, पूरा 0 होने के बाद अगर लेफ्ट साइड लिए तो VBR साइन थीटा लिखना है ना, प्लस हो जाएगा। हाँ, ये तो VRG VBR sin थीटा इक्वल टू VRG। बस, तो इतना एंगल से वो बोट रो करना है, ड्रिफ्ट 0 करने, ड्रिफ्ट 0 होने के लिए, VRG बाई VBR। बस, ये तो दूसरा इक्वेशन। ठीक है सर। राइट, नाउ वन मोर, सी, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, हाँ VBR सर। इज हाइपोटेनस, ठीक है, VBR इज हाइपोटेनस है ना, VRG एक साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, हाँ सर, ऑपोजिट है VBG वो। दूसरा साइड होगा ना, हाँ, VBG तो एडजेसेंट साइड। कैसे लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में VBR स्क्वायर इज इक्वल टू VRG स्क्वायर प्लस VBG स्क्वायर है ना, हाँ सर। अपन को चाहिए VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैसे लिख सकते हैं, VBR स्क्वायर माइनस माइनस VRG स्क्वायर, VRG स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर कैंसिल करे तो राइट साइड रूट पे आएगा, रूट के अंदर, ठीक है, हाँ हाँ। राइट, 1 सेकेंड, ओके सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हेलो फैजन, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। VBG मिल गया आपका, हाँ सर। तो T इज इक्वल टू D बाई VBG है ना, ऐसा भी रहेगा क्वेश्चन, D बाई VBG कैसे लिखना, VBR स्क्वायर माइनस
वी आर जी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा भी रहेगा न्यूमेरिकल, राइट। एक मिनट सर, लिख ले रहा हूँ। ओके सर, लिख लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, कर दूं मैं। नीट में है, नीट में पूरा पुराना नीट क्वेश्चंस पर है, 1 मिनट। नीट मोशन इन प्लेन है ना। या ठीक है, क्वेश्चन कर दो। कौन सा, मतलब ये वाला, हाँ 19। 91। ओके सर। पहले 21 कर दो, पहले 21, थोड़ा आसान से आप आंसर मिल जाए। 21 ठीक है सर। उसके बाद 19 जाएंगे। 21। वो तो सर, ये क्वेश्चन में अपने को वही अभी आप जो रिसेंट फॉर्मूला बताया वो चूज करना है ना? वही है बस। अब समझ में आया मेरे को। एक्चुअली में इसमें अपने को वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। बस ओके सर, अब भी कर रहा हूँ। लास्ट जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया ना वही है, लेकिन 15 मिनट्स हाँ को सर। आवर्स को का मतलब कन्वर्ट करना है। सर 15 मिनट समझ जो गया। दे दिया वो आवर्स को कन्वर्ट करना है।
सर √29। नाइस, देखिए एक बार, तो विड्थ क्या है, टी इज इक्वल टू, ये है ना फॉर्मूला, हाँ सर। टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर्स स्ट्रीम, वीआरजी फाइंड आउट करना है, टी मतलब 15 दे दिया ना, 60 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर के लिए क्या है, 1 आवर के लिए 60 मिनट्स है ना, 1 हाँ मिनट सर। का मतलब क्या है, 1 मिनट, 1 आवर 1 बाई by 4। 60, हाँ 15 मिनट्स मतलब 15 इंटू 1 आवर, ठीक है, 15 इंटू 1 मिनट, 15/60 हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ए वी बी आर, ए तो वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया है ना, तो हाँ सर। स्क्वायरिंग मतलब क्या है, 25 है ना, माइनस वी आर जी होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1/4 मिल जाएगा, ठीक है ना, 15/60 मतलब क्या है, 1/4। 1 by 4। अभी क्या करना है, अभी स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करे तो ये 16 हो जाएगा ना, समझ गया। हाँ। चलिए कंपेयर कर दो, 4 इज इक्वल टू आपको मिल गया √25 है ना, √25 माइनस वी आर जी स्क्वायर है ना, समझ गया। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद रूट भी कैंसिल हो जाता शायद हाँ ना। ना, ठीक है ठीक है, अभी अभी कर दो, 16 है ना ये तो 25, हम्म। समझ गया, हम्म। ये तो 4 स्क्वायर होगा, ये 25 इस तरफ लिए तो 16 माइनस माइनस 25, हो जाएगा। -9 इज इक्वल टू माइनस वी आर जी स्क्वायर है ना, हाँ माइनस माइनस कैंसिल। वी आर जी स्क्वायर मतलब 9 मतलब क्या है, √9 √9, 3। √9 में 3 के एम पी, समझ गया। हाँ समझ गया सर। खाली बस मैं ये नहीं करा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बस